Good afternoon. Good afternoon, sir. So, next topic is respiratory activity. We know various diseases which are there in respiratory system, and therefore we should, and we have seen, we have classified them. I repeat, because if you will go by the syllabus, you will find that the number of topics are much many than number of lectures we can have. So I need that there should be very active participation from you all, because the topics, as I told you, there are too many. In each topic there are so many tests, so many screening activities, and therefore this tabular one which I suggested, that will help you tremendously. Okay, so you go for each and every class, every every class. That is, class means not our classroom. Every type of therapeutic class, respiratory, antipsychotic, antidepressant, etc. For each class, you should try to make a table for this, and that will help you enormously. I repeat again that for that your basic knowledge will be helping you greatly. We have seen yesterday about the treatment for Parkinsonism, and even I told you, even if it is not given in a book, whether you can go for in vitro or not. And you said initially no, but then you were confirmed that yes, we can go for in vitro. Basically, what you need is application of all your knowledge which you had earlier for this particular implementation of concept. Very important and very easy to do it. Okay, only you have to remember few things. Example, again in Parkinsonism, only few chemical models we have to remember, and if you make it in tabular format, that will become easy. Okay, because as I told you, the syllabus has been compressed for a semester, which is actually for almost year or more than that. So where more description is expected, but here we will not miss anything, we will go for that. Now suppose, what are the respiratory diseases, what you know about them, which are the various respiratory diseases? Asthma, Asthma, very good. What is the pathophysiology of asthma? bronchoconstriction, Bronchoconstriction. What are the reasons for the asthma? Low reacting substance of anaphylaxis. Very good. Slow reacting substances. allergy, Very good. Allergy. Very good. Very good. Okay. So what are these and how they will cause? Very good, Prahlad. Leukotrienes. Which leukotriene? Montelukast, Montelukast is not a leukotriene. Leukotrienes Leukotriene antibodies. C4 and Yes, D4. very good. Yes. Who told now? What was the answer? Yes, interleukin cytokinin. Yes. Which leukotriene? C4 and D4. D. And not B? Sir, not major one. Okay. Hello. Yes. Very good. Good response. Now you will guide me. Suppose we want to go for test, what I should do? Okay, what is the diagnostic tool for asthma? How will you diagnose asthma?
Difficulty in breathing. Difficulty in breathing, very good. Uh, just difficulty in breathing will be sufficient, or we'll have to apply some diagnostic test? Metacolin test, sir. What it is? Don't know, sir, but Okay, okay. No problem, no problem. No problem. Okay. Any other thing? But good going. Dexamethasone stress test. And how it is done? Not having effective knowledge about that. Okay, okay. Let it be, let it be. Don't worry. Any other thing? Very important diagnostic criteria, diagnostic measure for that. Okay. Have you ever encountered some terms like respiratory volume, tidal volume? Yes, sir. क्या होता है ये सब? वाइटल कैपेसिटी? Sir, these are related to the inspiration and expiration. अच्छा, तो क्या कैसे, कोई और बताए? हाँ, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, सर. वॉल्यूम ऑफ लंग्स कैसे मालूम पड़ता है? कैसे मालूम पड़ता है ये? कल अपन ने जब क्लास छोड़ा था तो मैंने बोला था कि ये सब पढ़ के आना करके, है ना? अभी अपन सीरियस नहीं होंगे तो अपने में सीरियसनेस हो जाएगा। फिर अगर ये सीरियसनेस अपने में नहीं आएगा तो मैटर सीरियस हो जाएगा। हाँ, यस। कैसे करते भैया इसको? कैसा क्या करेंगे इसको? वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी। हाँ, हेलो, यस, आई एम लिसनिंग। सर, हाँ हाँ, बोल नागेश। so tidal volume is the amount of air that inspire and expire. Okay. How you will determine it and how it will help in asthma? Can it help in asthma? Yes, sir. तो कैसे कैसे? जल्दी जवाब दो, अपने को आगे बहुत सारा देखना है। फास्ट फास्ट नहीं आता है, छोड़ दो उसको। हाँ, अस्थमा असेल तर कमी व्हॉल्यूम मध्ये एअर इनटेक होईल. हो, पण ते करशील कसा तू? त्याचं मेजर कसं करशील? काही इन्स्ट्रुमेंट वगैरे माहिती आहे का त्याच्याकरता? Yes, Jyoti, correct. Spirometry, very good. So spirometry is one of the very important diagnostic tests, and on that basis you can go for that, and that will give you the amount of air exhaled, inhaled, and accordingly you can go for that. Okay. Now it may be difficult to do it on animals, but for animals then we have got various other instruments. They are called as a whole body plethysmograph. Plethysmo means measurement of volume changes. So here it will change the volume of whole body, and accordingly we will come to know about it. Anyway, good. Acha. Now tell me,
अगर इन विवो करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इन विट्रो करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, है ना। अभी अपने को क्या क्या मालूम है, व्हाट इज़ अस्थमा मालूम है, अपने को अस्थमा क्यों होता है मालूम है ना, वी नो अबाउट इट. देन व्हाट वी नो इज व्हाट आर द वेरियस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर अस्थमा. We know their targets, at what place they are acting and they are relieving asthma. We know what are the outcomes which are there after asthma. We know that the problem was that we have diagnosed asthma because the amount of air inhaled was not sufficient one, and we have diagnosed it with spirometry or respirometer, whatsoever we call it. Now on that basis, ये सब बेसिक नॉलेज है अपने पास. सो हाउ विल गो फॉर वेरियस स्क्रीनिंग एक्टिविटी, कैसे जा सकते हैं, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो. पहले लिखना उसको, हर एक के जब लिखोगे तो वेदर इट इज़ इन विवो इन विट्रो. इन विवो है तो कैसे, इन विट्रो है तो कैसे. हाँ, पर इन विवो है कि इन विट्रो है, फटाफट लिखते जाओ. वेरी गुड. ट्राई इंजेक्टिंग आईजी इन विवो एंड इंड्यूस अस्थमा. वेरी गुड, बहुत अच्छा. और अच्छा, अभिषेक आईजी क्यों ये होती है, बढ़ जाती है. विच केमिकल कॉजेस इंक्रीज इन द आईजी. सर मास्ट सेल रिलीजेस आईजी. मास्ट सेल से क्या रिलीज होता है. सर हिस्टामिन. हिस्टामिन. प्रहलाद ने सही, ज्योति ने भी दिया, प्रहलाद ने भी पहले ही दे दिया था. तो आईजी तो बहुत महंगा पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा. अगर अपन मान लो हिस्टामिन का स्प्रे दिया तो उसको चलेगा सर. चलेगा ना? चलो, अभिषेक खुश हो गया, मतलब आई एम हैप्पी, है ना. तो आईजी, इतना आईजी बहुत महंगा आता है आईजी. तो हिस्टामिन अगर दे देंगे अपन तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा अपना. चलेगा सर. आईजी भी कर सकते हैं वैसा. हाँ, मॉडल में अपने को वेरिएशन आ गया. वेरी गुड, बहुत अच्छा. अपन अभी ट्रैक पे जा रहे हैं, है ना. तो अपने एक मॉडल हो गया. अपन हिस्टामिन को अपन स्प्रे करेंगे नेजली, ठीक है. अभी सर्च करके रखो कोई तो भी एक, व्हाट इज कॉल्ड एज ए हिस्टामिन चेम्बर. हाँ, हिस्टामिन चेम्बर क्या होता है, उसका यूट्यूब वगैरह जो भी होगा तो सर्च करके रखो. व्हाट इज हिस्टामिन चेम्बर, उसमें क्या एनिमल रखते हैं, क्या करते हैं हिस्टामिन चेम्बर में, उससे क्या होता है. आई एम ट्राइंग दैट. सी, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. अगर अटेंटिव रहोगे तो आपके इवन पीजी में भी बहुत काम में आएगा ये. एंड आई एम नॉट डूइंग इट इन अ वेरी बुकिश वे. बाकी को मैं टेस्ट अभी 2 मिनट में पढ़ जाऊंगा तुम्हारे लिए, बट आई वॉन्ट दैट यू शुड लर्न इट कि बेसिस क्या है, जिसका तुम जो जीपैट को या अच्छा स्कोर करते हो या तुम्हारा बेसिक अच्छा है तो एक रिवाइज करो और उसका व्हाट आई कैन से यूटिलाइजेशन ऑफ इट इनटू मोर एडवांस फील्ड. तो दैट बेसिस पे काम करो. दैट नॉलेज शुड बी अप्लाइड नॉलेज. तो वी आर अप्लाइंग नाउ नॉलेज. तुम्हारे पास क्या नॉलेज था पहले कि व्हाट इज, वाई डिसीज इज देयर, व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिसीज, वो अपन यूज करते हैं. किस में यूज करते हैं, मॉडल बनाने में. व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स, वो भी हम यूज करते हैं मॉडल बनाने में, कि अगर यहाँ ये ट्रीटमेंट काम आ सकती है तो इसमें भी काम आ सकती है. वेरी गुड. ब्रोंकोस्पाज्म टेस्ट इन वीवो. तो ब्रोंकोस्पाज्म कैसा कराएगा सुनील. कोलिनर्जिक ड्रग के साथ सर. हाँ, कोलिनर्जिक भी कर सकते हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड.
बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे सर वो इंस्ट्रूमेंट है सर, कॉजेट कौन सा? कॉजेट एंड रैशलर है सर। अच्छा ठीक है, वो भी देखेंगे अपन। हाँ, उसको शेयर करो मेरे साथ, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हो आप, लेट मी सी। यस सर। और क्या करेंगे अपन? अच्छा, इन विट्रो टेस्ट हो सकती है। यस सर। कैसी करेंगे इन विट्रो, क्या क्या कर सकते हैं अपन? हिस्टामाइन रिसेप्टर बाइंडिंग। वेरी गुड। काय पे करेंगे हिस्टामाइन रिसेप्टर की बाइंडिंग? रिसेप्टर लेके करेंगे। रिसेप्टर सर लेके, हाँ इन सिलिको। वेरी गुड, इन सिलिको करेंगे, बहुत अच्छा। आगे आगे एक बात ध्यान रखना सभी लोग, इन सिलिको इज ओनली ऑफ थ्योरेटिकल इंटरेस्ट। इन सिलिको ये इसलिए किया जाता है ताकि आप बहुत सारे ड्रग का अननेसेसरीली ट्रायल एंड एरर में एनिमल के ऊपर या बाकी रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करो, ठीक है। बाकी इन सिलिको इज़ नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट, क्योंकि इन सिलिको कंप्यूटर में तो बहुत अच्छा बता रहा है, पर वो एक्चुअल में काम करता है कि नहीं करता है ये इन विट्रो और इन विवो से कंफर्म होगा। तो इन सिलिको आपके मन में सभी प्रकार की हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट, बट आफ्टर इन सिलिको यू शुड प्रूव इट बाय आइदर इन विट्रो एंड फाइनली बाय इन विवो। तो आपके पास जो जो अवेलेबल है वहाँ फाइनली आपको इन विवो जाना ही जाना है, पर हर एक में क्या क्या होगा, अगर इन विट्रो इन सिलिको में अपने को मालूम पड़ेगा कि ये ड्रग बिल्कुल ही एक्ट नहीं करता है, उसका टेस्टिंग आप अननेसरीली अभी नहीं करेंगे। वेरी गुड सुनील। और सर आइसोलेटेड ऑर्गन। आइसोलेटेड ऑर्गन, वेरी गुड। क्या होते कौन से आइसोलेटेड ऑर्गन? सर विंड पाइप। हाँ, विंड विंड पाइप मसल्स। हाँ, विंड पाइप के मसल्स आइसोलेट करके सर। देख अभिषेक, अभी फाइनल ईयर में विंड पाइप नहीं बोलना। विंड पाइप कब तक बोल सकते हैं? 6ठी 7वीं क्लास तक। यस सर, सॉरी। हाँ, अभी क्या बोलेंगे उसको? अस्थमा जब, ट्रैकिया सर। हाँ ट्रैकिया। क्या एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रैकिया होता है कि ब्रोंकाई होता है? तुम लोग साथ में देखो ना भैया। अभिषेक, यस सर। इसमें देख ये लोग ब्रोंकाई लिख रहे, तू ट्रैकिया बोल रहा है। एयरवेज सर। अरे बाबा, ट्रैकिया सर। एयरवेज कौन बोला? नागेश? नो सर, सुनील। सुनील, एयरवेज, एयरवेज तो नोज से लेके तो लंग्स तक जाता है, वो एयरवेज है। पर अस्थमा में क्या कॉन्स्ट्रिक्शन होता है? सुनील तूने तो लिखा ना ब्रोंकोस्पाज्म टेस्ट इन विवो, तो मतलब तुम क्या चेक कर रहे हो? यस सर, नहीं सर, वो वाइंड पाइप के लिए अल्टरनेटिव बोल रहा था सर मैं। नहीं, वेंट पाइप के लिए अल्टरनेटिव भी एयरवेज नहीं बोलना है अपने को, क्योंकि वी हैव टू बी स्पेसिफिक नाउ। ओके सर। है ना? अभी तुमने ही लिखा कि कहाँ स्पाज्म कहाँ हो रहा है? ब्रोंकस में। ब्रोंकस में, ठीक है ना? तो अपने को देखना पड़ेगा उसी हिसाब। यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, अभी से क्लियर? यस सर। हाँ, तो अभी क्या बोल रहा था अभिषेक को? क्या बोलना था वापस बोलो मेरे को। सर ब्रोंकाइल टिश्यू आइसोलेट करके उस पे अपन ड्रग चेक कर सकते हैं। कर सकते हैं, वेरी गुड। कैसे करेगा? ऑर्गन बात सर। वेरी गुड, ऑर्गन बात में।
और लेके कौन से ड्रग टेस्ट करेगा? सर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको रिलैक्सेशन। हाँ, कौन से ड्रग ब्रोंको, कौन से केमिकल ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, कौन से ड्रग ब्रोंको रिलैक्सेशन करते हैं? सर कोलिनर्जिक ड्रग्स कंस्ट्रिक्शन करेंगे हाँ, और बीटा 2 स्टिमुलेंट्स और जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है हाँ, वो रिलैक्स करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ज्योति, आइट्रोपिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर काम करेगा? ज्योति, मेरे को मत कंफ्यूज कर भला, अभी मेरे सीखने की ताकत नहीं है मेरे में। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और बोलो, बस इतने होंगे क्या? तुमने कैसे बोले थे पहले? मैंने पूछे ना कैसे होता है अस्थमा, आपने क्या क्या कारण बोले थे उसके? हाँ, ल्यूकोट्राइंस बोला था अभिषेक, तो ल्यूकोट्राइंस टेस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। और कैसे होता है कॉन्स्ट्रिक्शन? नागेश ने लिखा हिस्टामिन, हिस्टामिन कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। यस सर। हेलो, यस सर। कर सकते हैं। तो अपने को इन विट्रो से देख, अभिषेक ने अपने को कितना अच्छा रास्ता बताया, कितने टाइप के ड्रग अपन स्क्रीन कर सकते हैं इसमें। हेलो, यस सर। है ना? सो वी कैन स्क्रीन सो मेनी ड्रग्स। और इन विट्रो में और क्या मानेगा आपको? क्या सर? और अपने को इन विट्रो में क्या क्या कर सकते हैं? सबसे बहुत इम्पोर्टेंट आपका आ गया मुझे कि इन विट्रो में हम लोग टिश्यू को माउंट करेंगे, दैट इज ब्रोंकाई को माउंट करेंगे, ब्रोंकस को माउंट करेंगे, ब्रोंकल स्ट्रिप को रादर वी के, है ना। दूसरा नॉर्मली करते हैं ट्रैकियल चेंज भी करते हैं। ट्रैकिया का प्रॉब्लम क्या होता है? ट्रैकिया में करने में दिक्कत ये आती है कि ट्रैकिया में बहुत सारा जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, द हार्ड मास, क्या उसका नाम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। दैट सी शेप इज देयर एंड डायफ्रागम। हाँ, डायफ्रागम। नहीं रे बेटा, ट्रैकिया में डायफ्राम कहाँ से आएगा? ट्रैकिया में कार्टिलेजेस जो होता है ना, सी शेप का कार्टिलेज होता है, वो कार्टिलेज जो है दैट वोंट कॉन्स्ट्रिक्ट, तो इसलिए ट्रैकिया डिफिकल्ट जाता है। पर कुछ लोग ट्रैकियल चेंज भी करते हैं, ठीक है। तो आइसोलेटेड ट्रैकिया भी कर सकते हैं, ब्रोंकाई भी कर सकते हैं। ब्रोंकाई इज कंपैरेटिवली बेटर, ठीक है। सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट इन विट्रो टूल्स, दैट इज टिश्यू लेवल, ठीक है। अब मान लो टिश्यू लेवल पे आपको काम करना है ना, एंड यू गॉट फ्यू टिश्यूज, एग्जाम्पल बीटा 2। तो बीटा 2 रिसेप्टर वाला जो जो टिश्यू होगा वी कैन वर्क, यू अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। क्योंकि अपने को क्या देखना है, बीटा 2 पे एगोनिस्ट एक्टिविटी देखनी है। तो मान लो यूटेरस में बीटा 2 रहता है कि नहीं रहता है? हेलो,
अरे भैया बीटा 2 रिसेप्टर रहता है कि नहीं यूटेरस में, Yes, sir. यस सर. है ना? तो वो यूटेरस में भी अगर अपन ने देखा बीटा 2 अपने को मालूम पड़ना चाहिए कि दिस ड्रग इज बीटा 2 एगनिस्ट, तो अपना काम हो गया. वैसे हिस्टामिन और कोई टिश्यू पे मालूम पड़ा, अपना काम हो गया कि ये ड्रग हिस्टामिन एंटी हिस्टामिनिक है. एसिटाइल कोलिन वाला ड्रग और किसी ड्रग मालूम पड़ गया कि दिस इज एसिटाइल कोलिन एंटागोनिस्ट, अपना काम हो गया. बिकॉज वी नीड द बेसिक एक्शन. इट डजेंट मीन कि अपने को यही चाहिए. अपन ये भी कर सकते हैं साथ में फ्रॉम एनी साइड. तो एएनएस वाले जो ड्रग्स हैं, आप जहाँ जहाँ काम करते हैं, वो एएनएस वाले ड्रग भी इनडायरेक्टली यहाँ काम में आ रहे हैं आपको. एएनएस की स्क्रीनिंग समझ रहा है आपको? यू आर गेटिंग? यस सर. हाँ, सिमिलरली हिस्टामिन की भी जहाँ जाओगी अपने को काम में आएगी. ठीक है, ठीक है. यस सर. तो Yes, sir. these are the models इन विट्रो. इन विट्रो में और क्या क्या काम में आएगा अपने को? सेल लाइंस, ब्रोंकाई की सेल लाइंस, या जो सेल्स हैं जहाँ पे मस्कारिनिक रिसेप्टार हैं, या हिस्टामिनिक रिसेप्टार्स हैं, या तो लिकोट्राइन के रिसेप्टार्स हैं, है ना? तो जहाँ जहाँ ये रिसेप्टार है जो अस्थमा में कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, या बीटा 2 के रिसेप्टार्स हैं, तो जो कंट्रीब्यूट करते हैं वी कैन चेक ऑल दिस ऑन यूजिंग सेल लाइंस और डायरेक्ट रिसेप्टार्स. तो कितने अपने पास मॉडल्स हो गए इन विट्रो के? बहुत सारे. ओके, हेलो. यस सर. तो अभी आप लोगों ने जो बोला उसको अपन आई थिंक कि बुक नहीं खोला होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ. अगर खोला भी होगा तो आई डोंट माइंड, बट इफ़ यू हैव, जिन्होंने नहीं खोलते ओपन दिया है, लेट अस चेक हाउ दे हैव इवॉल्व. अपन ये देखते हैं कि उन्होंने अपने नॉलेज का यूटिलाइजेशन कैसे किया, है ना? तो देखो, दिस आर वेरियस टेस्ट. इन विट्रो टेस्ट, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर बाइंडिंग, आप लोगों ने बोला कि नहीं बोला? यस सर. बोला. Yes, sir. ठीक है ना? टेस्ट ऑन आइसोलेटेड ऑर्गन, है ना? उसमें गिनी पिग लंग स्ट्रिप्स कर सकते हैं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन की, पर वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है. लंग स्ट्रिप्स हैं. स्पाज्मोलाइटिक एक्टिवा इन ट्रैकिया हमने डिस्कस किया. रिएक्टिविटी ऑफ आइसोलेटेड ट्रैकिया, परफ्यूज ट्रैकिया, ब्रोंकियल परफ्यूजन ऑफ द आइसोलेटेड लंग, वैस्कुलर एंड एयरवे रिस्पॉन्सेस ऑफ लंग, ये सब हमने इन विट्रो टेस्ट किए. इन अपार्ट फ्रॉम दैट, इन विट्रो स्टडीज फॉर म्यूकस सिक्रीशन, ब्रोंको अल्वेओलर लेवाज, सिलियरी एक्टिविटीज, कल्चर ऑफ ट्रैकियल एपिथेलियल सेल, अपन ने ये देखा. ठीक है. यस सर. फिर इन वायु में अपन ने क्या देखा? मैंने कहा था कि अपने पास रेस्पिरेटरोमीटर होता है, वैसे यहाँ आता है बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी, मतलब पूरी बॉडी का वॉल्यूम चेक होता है ना? एंड रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स आफ्टर हिस्टामिन इंड्यूस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इन आइदर एनेस्थेटिस और वर्किंग गिनी पिग्स. किसी ने देखा क्या हिस्टामिन चैम्बर अभी तक? मैंने बोला था आप ट्राई करो साइमल्टेनियसली पैरेलली. चेक किया किसी ने? यस सर. दिखा क्या हिस्टामिन चैम्बर कहीं? यस सर. और उसी के मॉडिफाइड फॉर्म है ना? दिस इज व्हाट 216 डिवाइडेड. हाँ हाँ, उसी का अभी वर्जन जो है, एडवांस वर्जन जो है, उसको डेवलप किया इनटू दिस कॉन्सेट और रोजलेस वाला. लेट अस सी उसका कैसा ये है डिज़ाइन. ठीक है. तो हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसमें क्या होगा? we will anesthetize guinea pigs, and this bronchospasm will be elicited by platelet activating factors PAF or substance P और histamine, जो भी जिससे होगा. we are having so many things by which we can induce bronchospasm.
anesthesia should be deep and the trachea is cannulated by means of two-way cannula, okay, one arm which is connected to the respiratory pump and other is to the transducer. जो ट्रांसड्यूसर है स्टैथम ट्रांसड्यूसर वो एयरवे प्रेशर चेक करेगा, वो मेजर करेगा प्रेशर को, है ना. नाउ दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इन विवो मॉडल ऑन एनेस्थेटाइज एनिमल. जैसे ब्लड प्रेशर का अपन ने दो मॉडल देखे थे, याद होगा कि इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव. इन्वेजिव में हमने एक कैनुला डाला था और उस आर्टरी का ब्लड प्रेशर मेज़र किया था, उसके लिए सर्जरी ज़रूरी थी, एनेस्थीसिया ज़रूरी था. और एक थी टेल कफ वाली मेथड जिसमें हमने टेल डाल दी और टेल को कफ, जो जैसे अपने नॉर्मल हाथ में कफ इन्फ्लेट होता है वैसे इन्फ्लेट होगा कफ, और फिर ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे. तो हमने उसको नॉन इन्वेजिव बोला क्योंकि एनिमल को सर्जरी नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता है. सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, होल बॉडी प्लेथिस्मोग्राफ में होल एनिमल रहेगा जिसको कुछ नहीं करना पड़ता है. यहाँ अपने को सर्जरी करनी पड़ेगी. और जो अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, प्रेशर ये होगा, और जैसे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, उसी तरह ये होगा. एंड द एनिमल इज़ आर्टिफिशियली रिस्पायर्ड विथ स्टार्लिंग पम्प, ये जिसको अपन वेंटिलेटर बोलते हैं. तो ये वेंटिलेटर होता है जिस वेंटिलेटर पे ये एनिमल रखा जाएगा और आर्टिफिशियली रिस्पायर्ड विथ प्रेशर सेट एट 9 to 120 मिलीमीटर ऑफ वाटर, और उसको उस हिसाब से मेजर करके विल चेक वेरियस वॉल्यूम्स. तो हम लोग सब ड्रग्स चेक करेंगे. वी नो एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन से क्या होगा, दिस ऑल आर नोन एज ए स्पाज्मोजेंस, ठीक है ना. तो एसिटाइलकोलिन विल कॉज स्पाज्म, मिथाकोलिन विल कॉज स्पाज्म, हिस्टामिन विल कॉज स्पाज्म, ब्राडिकाइनिन विल कॉज स्पाज्म, ओएल्बुमिन दैट इज इट इज़ अ अल्बुमिन और इट इज़ अ प्रोटीन. प्रोटीन से क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, है ना, अभिषेक बोल रहा था थोड़ी देर पहले, जिससे आईजीजी प्रोड्यूस होंगे. और इट इज़ अ एलर्जन, इट इज़ अ प्रोटीन जिसकी वजह से एलर्जी होगी. प्लाज्मिजोनोजिन एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF दैट विल कॉज लिकोटाइन, LTC4, LTD4 दिया जाएगा, और सब्सटेंस P. दीज आर ऑल एजेंट्स. अब इस पे से जिस एजेंट को तुम्हारे ड्रग ने ब्लॉक किया, इसका मतलब क्या, अगर एंटी एस्थेटिक एक्टिविटी विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. समझे कि नहीं समझे, तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का, है ना. तो क्या कर सकते हैं, क्या बोलेंगे फिर कि अगर मान लो इन ड्रग में से किसी ड्रग से, एक भी ड्रग से इनकी एक्टिविटी ब्लॉक नहीं हुई, और फिर भी अगर ड्रग तुम्हारा मान लो ब्रोंको डायलेशन बता रहा है, तो व्हाट कैन बी द रीजन. इट इज़ नॉट एबल टू ब्लॉक एसिटाइलकोलिन, इट इज़ नॉट एबल टू ब्लॉक मिथाकोलिन, हिस्टामाइन, या सभी में थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज दिखा रहा है, तो क्या मानेंगे उसको. Sir, can you repeat please? The drug which is showing effect with acetyl, some effect with acetylcholine, some effect with methacholine, some effect with histamine, some effect with bradykinin, some effect with oalbumin, and all this, इन सब में से इफेक्ट दिखा रहा है, तो उसको क्या मानेंगे. सर सब थेरापेटिक इफेक्ट दिखाएगा ना फिर वो. मतलब क्लिनिकल रिस्पांस दिखाएगा बट जितना चाहिए उतना नहीं दिखाएगा. नहीं, ऐसा क्यों होगा, वो सब पे एक्शन कर रहा है, ऐसा लग रहा है अपने को सब पे. ये तो इंड्यूसर्स हैं, इन्होंने तो इंड्यूस किया, इसके बावजूद भी इफेक्ट दिखा रहा है. सो दैट मीन्स इट हैज़ गॉट सम अदर मैकेनिज्म ऑन दैन दिस, जिससे वो हो सकता है इट इज इटसेल्फ इज एगनिस्ट, जैसे बीटा-2 एगनिस्ट है, तो वो खुद की एक्शन कर रहा है. तो एसिटाइलकोलिन कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, वो रिलैक्सेशन का काम कर रहा है. मेथाकोलिन कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, वो रिलैक्सेशन का काम कर रहा है, ठीक है. और जब अकेले में देंगे तो वो रिलैक्सेशन करेगा, है ना. मान लो एनी ड्रग इज गिवन
It is not showing on action on anything, मतलब it's not able to block any action, but it is able to block histamine action. That means the drug is of what? Which class? Antihistamine. Very good, antihistaminic. Drug is able to block all the action, is not able to block all drug except leukotriene. So that means what? अगर वो ल्यूकोट्राइन्स को ही ब्लॉक कर पाता है, बाकी को नहीं कर पाता है, देन दैट मीन्स व्हाट? Leukotriene receptor blocker. ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर. ये तुम्हारे ध्यान में आ रहा है ये चीज? यस सर. अब इसमें कौन से ड्रग अपने को ध्यान में ये आएंगे? देखो, ल्यूकोट्राइन इज प्रोड्यूस इन बॉडी, तो अगर बाहर से हम कॉन्ट्रैक्ट इंजेक्ट करके अगर कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो ल्यूकोट्राइन का इफेक्ट अपने को ध्यान में आएगा. जब बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छा, एनीवन नोज एनी ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिशन? Ralutan. वेरी गुड, बहुत अच्छा. कौन बोला? कौन बोला? Sir, Abhishek. अभिषेक. अच्छा, तू ज़्यादा पढ़ाई करता है इसलिए क्लास को नहीं आता है क्या? अच्छा, गुड गुड रिस्पॉन्स. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर. ठीक है, जिलेउटान, बहुत अच्छा. जिलेउटान इज व्हाट? क्या है उसका मैकेनिज्म? लॉक्स लाइपोक्सिजनेज. Inhibitor. लिपोक्सिनेज. तो इसमें कौन से किस्में मालूम पड़ेगा अपने को? ये ड्रग दिख रहा है ना तुमको यहाँ पे? तो इसमें जिलेउटान की एक्शन कहाँ आएगी अपने को, कहाँ मिलेगी? ल्यूकोट्राइन LTC4D4. अच्छा, LTC4D4 बराबर ना? यस सर. अच्छा, एवरीवन इज ओके? यस सर. मैं अगर कहूं तो ऑल्ब्यूमिन में आएगी तो सी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप यहां लिकोट्राइन दे रहे हैं और वो लिकोट्राइन का आपको रिस्पांस मिल रहा है. ठीक है, जब आप जब जिलेउटान देंगे तो वो बॉडी में का लिकोट्राइन कम कर रहा है, एक्सटर्नली एडेड लिकोट्राइन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है जिलेउटान का. समझ रहे कि नहीं समझ रहे सब लोग? यस सर. जो हमने बाहर से ऐड किया है लिकोट्राइन, देखो डोज देखो कितना कम है, मालूम है? देख रहे हो कि नहीं डोज? वेरी हाँ सर, 1 माइक्रोग्राम पर केजी. हाँ, रैट 100 ग्राम का है या 200 ग्राम का है, तो डोज कितना हुआ? .001 माइक्रोग्राम. ठीक है, 200 ग्राम के लिए 001 कहाँ से होगा बेटा? .002 सर. ओके, ठीक है. ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारा? यस सर. तो जिसके अपने पास एगनिस्ट है, उस एगनिस्ट के एक्शन ब्लॉक करते हैं, उसको अपने को यहाँ मालूम पड़ेगा. और जो ड्रग एंजाइम पे एक्ट करते हैं, या तो आप उसको इन विट्रो में एंजाइम पे ट्राई करेंगे, अपने को एंजाइम एसेस आते हैं, वी कैन गो फॉर एंजाइम एसेस. ओके, लिकोट्राइन का जो सिंथेसिस के लिए है, सो दैट वील यूज इट, यूजिंग दैट एंजाइम अपने को क्या रिजल्ट आता है वो देखेंगे. ठीक है, तो एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि बेसिक फार्माकोलॉजी का इसमें यूज़ है. द एंटागोनिस्ट इज एबल टू ब्लॉक द एगनिस्ट ओनली. तो व्हेन वी आर गिविंग एगनिस्ट, एगनिस्ट के रिस्पॉन्स को ब्लॉक करना ही एंटागोनिस्ट का काम है.
जो बॉडी में प्रिपेयर होते हुए बंद कर रहा है, तो उसके सिंथेसिस इनहिबिशन के लिए आपको अलग से मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, उसको अलग से उसकी सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, बिकॉज इट इज इनहेरेंटली फॉर्म, इट इज नॉट एक्सटर्नली एडेड। तो जिले उठान वाला इसमें नहीं दिखेगा आपको। यू आर गेटिंग दिस? Yes, sir. So these are the models, this is how we are getting this, and we can go for this. One very important thing, so these are all models. अब जो जैसे मॉडल देखेंगे तो you will find that what you are doing it, and then you are evaluating it, you are getting these results. Okay, and this is one of the very one of the important method it is being used. There are many slight modification people have made it, and they can do it by various ways, and only thing is the modifications are only just small modification. जैसे एग्जाम्पल ये देखो कि ओअल्बुमिन सेंसिटाइज, ओअल्बुमिन सेंसिटाइज मतलब क्या कि जो ओअल्बुमिन एक बार, आई टोल्ड यू इट इज अ एंटीजन, तो एंटीजन को पहले एक बार सेंसिटाइज होना, यू हैव टू अलाउ इट टू गेट सेंसिटाइज, एंड देन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर कॉजेस द प्रॉब्लम यूजुअली, दिस इज द। तो उसको दिया आपने, उसके बाद क्या है कि पैरासिटिक नेमाटोड जब किया तो आईजी लेवल बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। तो देख अभी से डायरेक्ट आईजी देने की ज़रूरत नहीं है, अपन ओअल्बुमिन से या और कोई केमिकल से आईजी बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग फॉर various methods. We have got various tests which are there, okay, and accordingly we can go for that. Very important thing is again वही मॉडल पे लेके अपने पास अलग अलग सिस्टम्स होगी। इफेक्ट ऑफ arachidonic acid on this PAF, that is platelet activating factors. तो how we are doing it as a inducer, that will cause bronchoconstriction. Instead of that we can use this, you know that all the asthma is a inflammation, isn't it? Yes, sir. Can we use anti-inflammatory agents, non-steroidal anti-inflammatory agents? Yes, sir. Yes, sir. We can use it, isn't it? Because it is also inflammation. Yes, sir. बराबर है ना? Everyone understood? Simple. What are these? Non-steroidal anti-inflammatory agents. They are causing reduction in the inflammation. Asthma is also inflammation. We can use it. It will reduce it. है कि नहीं? Yes, sir. कौन नागेश बोल रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अकेला बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है? हेलो, बाकी लोग क्यों चुप हो गए? अच्छा, विच आर दिस NSAIDs आर यूज? तुम्हारे सिलेबस में कहीं आया था कि दीज आर द NSAID विच आर यूज फॉर अस्थमा? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह कोई आया था? डेक्सामेथासोन आया था, वेरी गुड। NSAIDs मैं बोल रहा हूँ, डेक्सामेथासोन इज नॉट NSAIDs, ओनली यू कैन यूज स्टेरॉइड। ओके, NSAID यूज कर सकते हैं? नो सर। हाँ, यस और नो? नहीं यूज कर, नो सर। क्यों? सर वो कॉक्स पाथवे इनहिबिट करेंगे तो जितना भी एराचिडोनिक एसिड है वो लॉक्स पाथवे में चला जाएगा सर, तो ल्यूकोट्राइन्स ज्यादा बनेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सुन नागेश, we cannot use NSAIDs
although they are anti-inflammatory, we cannot use them because, ओके सर. है ना, ध्यान रखना ये सब चीज़, इसलिए लोग जवाब देते ध्यान रखो, बहुत अच्छी चीज़ है. So therefore arachidonic acid induce can also be one of the model on that basis. ठीक है. So Yes, sir. effect of arachidonic acid or PF on respiratory function. So we can have this. Already we know that there are so many drugs which are working on that. Bronchial hyperactivities are there. So this is what histamine chamber, isn't it? Histamine chamber मैंने कहा था देख लेना करके. So there are two boxes are there and we are making the histamine spray and we are checking what kind of activities are there. ठीक है. So there are, this is what we call as a histamine chamber and this is bronchial hyperactivity we are measuring. So this is aerosols are supplied by ultrasound nebulizer. Now automations are there. इन आवर ओल्ड डेज वो हाथ से पंप करते थे, जो ब्लड प्रेशर के लिए पंप करने के लिए बल्ब आता है ना, रबर का बल्ब, उससे पंप करते थे हिस्टामिन चेम्बर को. अभी वी हैव गॉट सो मेनी ऑटोमेशंस इन दैट एंड वी कैन हैव वेरी क्लियर कट ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस which can be sprayed into it and we can measure it, the asthma, bronchial asthma attacks in the animal, and accordingly we can say that whether the drugs can reduce it or not. ठीक है. So these are all various effects. Body plethysmography मैंने कहा, what is plethysmography मैंने बताया था अभी. What is plethysmography? मेजरिंग ऑफ वॉल्यूम. वेरी गुड. वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए होता है ना. जो इन्फ्लेमेशन अपन चेक करते हैं उसमें भी एक अलग प्लेथिस्मोग्राफी होता है, बट इट इज़ ओनली पॉप प्लेथिस्मोग्राफी, वो अपन बाद में देखेंगे. हियर होल बॉडीज का जो है एक चैम्बर आता है, तो जब रेस्पिरेशन करता है एनिमल तो वो उसकी उतनी बॉडी वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब एक्सपायर करता है तो उतना बॉडी वॉल्यूम कम हो जाता है. तो इस प्रिंसिपल पे बेस में जब अस्थमा होगा तो उसका इंस्पिरेशनल एयर कम हो जाएगा, है ना. सो बॉडी वॉल्यूम उसका कम बढ़ेगा. बॉडी, यू गॉट इट. और आपकी जो ड्रग्स है दैट विल रिस्टोर द बॉडी वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज ए होल प्लेथिस्मोग्राफी. यू अंडरस्टूड दिस मैकेनिज्म? हेलो. यस सर. हाँ, तो उसके भी इंस्ट्रूमेंट्स जो है, क्योंकि आपको है ना इंस्ट्रूमेंट थोड़ा यूट्यूब पे या इमेज में नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा. सो दीज आर ऑल वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज फॉर दैट. एंड yes, these are actually same models. We are finding that they are repeating. We can have same models. So basically what we have found today is there are various models in vivo, in vitro. In our basic aim is to check the if it is in vivo, we say that how much air can be inhaled and exhaled. Either we do it by cannulation and measuring or respiratory spirometry like activity, or we do it using what we can say. Hello. सर एक क्वेश्चन था, न्यूमेटोग्राफी क्या होता है सर? हाँ, न्यूमेटोग्राफ क्या होता है सर? एक काम कर, गूगल पर डाल व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेटिक्स, चेक कर. ओके सर. कर तुरंत कर, मेरे को बोल. कोई भी चेक करके डालो फास्ट. कंटेनिंग और ऑपरेटेड बाय एयर और गैस अंडर प्रेशर. जब एयर से रिलेटेड कोई भी प्रेशर या वॉल्यूम मेजरमेंट अपन करते हैं तो उसको न्यूमेटिक्स बोलते हैं. ओके सर. है ना. उससे रिलेटेड जो टेक्निक है उसको ये बोलेंगे. ठीक है. हेलो. यस. Okay. So I think because you have to attend a class, we'll leave at least 3-4 minutes before. But one thing I'll repeat that अभी बहुत सारे टॉपिक्स है, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सिस्टम में वापस से समझा रहा हूँ तुमको, कि तुम उसकी अगर बेसिक पढ़ोगे तो तुमको सब मॉडल्स बहुत इजीली समझ में आएंगे.
and you can yourself do most of these things. You start making tables, charts, क्योंकि इतना एग्जॉस्टिव कंटिन्यूस में पढ़ना डिफिकल्ट जाएगा, उसके टेबल्स करोगे तो काम में आएंगे. यू कैन प्रिपेयर टेबल एंड सबमिट इट. ओके, अभी तक अपने एक बहुत कम टॉपिक हुए हैं, अभी अपने पास टाइम कम है. डिटेल में हर एक टॉपिक के हर एक टेस्ट को हर एक के लिए जाना डिफ़िकल्ट होगा जैसे जैसे आगे जाएंगे. इसमें मैं टाइम इसलिए दे रहा था शुरुआत में, या दे रहा हूँ अभी भी, क्योंकि आपको बेसिक्स एक बार समझ में आया कि हम मॉडल कैसा डेवलप करते हैं. मॉडल इसलिए जो पैथोफिजियोलॉजी है उस डिसीज़ की, उसके जैसे कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं हम लोग. व्हाट्स योर कंडीशन इट कैन बी. अभी अस्थमा में क्लियर हुआ अपने को, हमने उससे पहले मेमोरी में देखा या पार्किंसोनिज्म में देखा हमने कैसे डोपामिन वाले न्यूरॉन्स का डैमेज किया था या उसको ब्लॉक किया था. सो वी ट्राई टू मिमिक सिमिलर कंडीशन एंड वी चेक द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग. तो तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज सभी है, तुमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी मालूम है, तुमको उस ड्रग की उस डिसीज़ की पैथोलॉजी मालूम है, उसके कॉजिटिव फीचर्स मालूम है ना, और उस कॉजिटिव फीचर्स के बेस पे तुमने ट्रीटमेंट्स देखी है. दैट मीन्स अगर ये ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, दैट मीन्स वो रिसेप्टर इसके कॉजिटिव में है, उस रिसेप्टर से तुम्हारा रेक्टिफिकेशन हो सकता है. तो तुम्हारी जो भी टेस्ट होगी, जो भी तुम्हारी स्क्रीनिंग होगी, इट विल बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग. वो जितने रिसेप्टर्स है, जैसे अस्थमा में हमने बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स देखे. अस्थमा में हमने हिस्टामिन देखा, वो पॉजिटिव है. कोलिनर्जिक रिसेप्टर पॉजिटिव है. हमने देखा कि लिकोट्राइन पॉजिटिव है. ठीक है, और उन सबको पैदा जो करने वाले हैं वो इम्यूनोसप्रेसेंट है. जो इम्यूनोसप्रेसेंट है उस इम्यूनोलॉजी को सप्रेस करेंगे, विच इज़ इंक्रीजिंग दिस. वी नो दैट देर आर बीटा 2 एगनिस्ट विच आर ब्रोंकोडायलेटर्स. तो हमको सब ड्रग्स की बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मालूम है, और उस बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को टेस्ट करने के लिए आइदर वी नीड सेल लाइन्स, वी नीड टिश्यू जहाँ वो रिसेप्टर्स होंगे, या वी नीड द पर्टिकुलर एंजाइम्स, है ना, या वी नीड व्हाट द प्यूरिफाइड रिसेप्टर्स. तो दीज आर वेरियस. इन विट्रो और इन विवो में हमने सबके एग्निस्टिक एंटीगोनिस्टिक एक्टिविटी देखी. जब हम इन विवो देखते हैं तो हमको डायरेक्ट इफेक्ट ध्यान में आता है. क्या व्हाट हैपन टू ब्रोंकियल एयरवे, उसका कम ज़्यादा क्या हुआ. जब हम डायूरेटिक देखते हैं तो इन विवो में डायरेक्ट यूरिन प्रोडक्शन मालूम पड़ता है. इन विट्रो में मैकेनिज्म मालूम पड़ती है, आउटपुट अपने को नहीं ध्यान में आता है. अपने को खाली ये ध्यान में आता है कि यस दिस ड्रग इज एबल टू बाइंड विद दिस रिसेप्टर एंड कैन आइदर डू कॉन्ट्रैक्शन, कैन कॉज रिलैक्सेशन, और कैन ब्लॉक द कॉन्ट्रैक्शन लाइक दैट. तो ये थोड़ा सा इस पे ध्यान दो ठीक से. तो जैसे जैसे आगे जाओगे तो अपन फास्ट भी करते जाएंगे तो मॉडल समझ में आएंगे आपके. सो दैट वी विल एबल टू फिनिश द सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, एंड यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग. तो एक दिन पहले आज के टॉपिक को रिवाइज करो थोड़ा सा, और कल के टॉपिक के लिए इमीडिएटली तुम्हारा बेसिक्स क्लियर करके रखो ताकि वी कैन गो वेरी फास्ट. ओके, टुडे देयरफॉर आई टुक इन दिस वे. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, because this is related to the basics, it will help you a lot. So take care and be careful and be watchful, study the things which are important for the basics.